आ गया लोग। Yes, गुड sir. इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। तो तुम लोग में कौन बताएगा डिफिनीशन ऑफ ट्रेजेडी? है? Yes, sir. Tragedy is the imitation of action which is serious and which has sort of fear and pity in it. अभी और उसमें था ना। चलो नेक्स्ट बोलो। A tragedy is imitation of action that is serious, complete, and of certain magnitude. Is complete. in itself. हम्म हम्म हेलो। कोई राइटर के Yes, sir. हाँ बोलो। आवाजें नहीं आ रही हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आप तुम लोग कॉपी कलम लाया है ना? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. कॉपी कॉपी कलम निकालो और लिखो। रेडी? Yes, sir. लिखवाइए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फॉर द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी, for the finest form of tragedy, comma, the plot must be not simple. The plot must be not simple but complex. A plot must be not simple but complex, comma, and further that it must imitate actions arousing pity and fear. Arousing pity and fear, comma, since that is the distinctive function of this kind of imitation. Sir, since that के बाद Since that is the distinctive function of this kind of imitation. Full stop. It follows therefore that there are three forms of plot to be avoided. That there are three forms of plot to be avoided. ए कोस्ट में लिखो। A good man must not be seen
passing from happiness to misery. A good man must not be seen passing from happiness to misery. B. A bad man from misery to happiness. A bad man from misery to happiness. Or C. As extremely bad man, an extremely bad man. Sir, misery to happiness के बाद C. Point C. An extremely bad man falling from happiness into misery. Comma, for such a story will not move us either to pity or fear. To pity or fear. Semicolon. Pity is occasioned by undeserved misfortune. So deserved by Undeserved. देखो, pity is occasioned by undeserved misfortune. Undeserved misfortune. And fear by the misfortune of one like ourselves. And fear by the misfortune of one like ourselves. Full stop, paragraph change. There remains then the intermediate kind of personage. Intermediate kind of personage. Comma. A man not preeminently virtuous and just jest and just अंडा ले हैं 5 गो हुआ and yes, sir. preeminently virtuous and just, comma, whose misfortunes comma, however, are brought upon him comma, not by vice, vice, not by vice and depravity comma, but by some error of judgment.
but by some judgment. Paragraph change. The perfect plot accordingly must have a single and not a double issue. Must have a single, huh? The perfect plot accordingly must have a single and not a double issue. बांध दो उसमें. A double issue. Semicolon. The change in the hero's fortune. हाँ धो के लाना रे. The change in the hero's fortune must not be from misery to happiness. From misery to happiness, but from my happiness to misery. Semicolon. And the cause of it. So from misery to happiness के बाद. From misery to happiness, comma, but from happiness to misery. But from happiness to misery. And the cause of it must be not any depravity. And the cause of it must be not any depravity, comma, but some grave error on his part. On his part. So not any depravity. Comma, but some grave error on his part. Pablo, up. हो गया. फिर पैराग्राफ चेंज करो और दूसरा पॉइंट दो. The plot should be so framed that even without seeing the things take place, comma, he who simply hears the account of them will be filled with horror and pity at the incidents. Semicolon. To produce. Pablo, up. फिर
horror and pity at the incidents, semicolon, to produce the same effect by means of by means of the spectacle is less artistic and requires extraneous Unless- aid. A spectacle is less artistic and requires extraneous aid. Full stop. The tragic pleasure is that of pity and fear. The tragic pleasure is that of pity and fear, comma, and the poet has to produce it by a work of imitation. And the poet has to produce it by a work of imitation. Full stop. It is clear. It is clear, comma, therefore, comma, that the cows should be included in the incidents of the story. Incident of the story. हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पैराग्राफ चेंज. In the characters, comma, there are 4 points to aim it. Therefore के बाद In the characters, comma, there are 4 points to aim at. पहला, that they shall be good. दूसरा, they must be appropriate. They must be appropriate. Full stop. तीसरा, they must be like reality. They must be like reality. Full stop. चौथा, they must be consistent. They must be consistent. Full stop. Tragedy is an imitation of personages better than the ordinary man. सर एक बार फिर से. कौन चीज? Tragedy is an imitation. Tragedy is an imitation of personages better than the ordinary man.
better than the ordinary man. क्लियर हुआ? हो गया? Yes, sir. तो अब हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है, सारा पॉइंट्स को। तो लिखा है क्या कि फॉर द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी द प्लॉट must be not simple but complex, and further that it must imitate actions arousing pity and fear. कहने का मतलब क्या है कि if you choose a simple plot, it will be very difficult to analyze the elements of pity and fear. ठीक है? When the situation becomes complex, we see the tragic hero struggling against all the heavy odds of his life. The life challenges him, and he challenges the problems of human life. And we see the reactions of the tragic hero and other persons involved in the tragic work. ठीक है? And the plot, if it is complex, it must imitate actions that can ultimately result in pity and fear. If the plot fails to arouse the sentiments either of pity or of fear, the aim of tragedy will never be fulfilled, and so tragedy will become meaningless and there will be no interest in that tragic work. क्यों? Because the main aim of tragedy is to see the arousal of pity and fear. It's the main function, ठीक है, of imitation. And Aristotle warns that certain things should be avoided while building up the structure of a tragedy. ठीक है? पहला क्या है कि a good man must not be seen passing from happiness to misery. ठीक है? एक जो एकदम ही अच्छा व्यक्ति है, आउट ए गुड पर्सन, ठीक है, he should not be seen passing from happiness to misery. ठीक है? जो एकदम एक्सट्रीमली गुड पर्सन है, ठीक है, वो अगर तड़प रहा है, वो अगर सफर कर रहा है, ठीक है, तो फिर ट्रेजेडी का एम पूरा नहीं होता है। क्लियर ना? है? और एपिक में भी यही बात होती है। इवन द हीरो हैज टू सफर फ्रॉम सर्टेन फॉल्ट, सर्टेन वाइस, सर्टेन वीकनेस। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जो हम हर पॉइंट से गुड हो,
वैसे आदमी का अगर प्लॉट बनाया जाएगा और वो सफरिंग की ओर बढ़ेगा, वो माइजरेबल कंडीशन की ओर बढ़ेगा, तब उससे क्या होगा, न पीटी उत्पन्न होगी न फियर उत्पन्न होगा। ठीक है, वो ज्यादा आपको इंस्पायर नहीं करेगा, आप में दूसरे टाइप का वो भय पैदा कर देगा। ठीक है, ये है कुछ भी कर लो, काहे भी कर लो। लाइफ में देखो एक कितना भला आदमी था, वो अपना जो है जिंदगी का सफर उसका कितना बढ़िया था, हैप्पी मूड था, और वो मेरी की ओर बढ़ गया। ऐसा करने से क्या होगा? पीटी न उत्पन्न होगा न फियर होगा, ये अट ही नहीं पाएगा। जैसे मान लिया जाए कि किंग लियर उसकी गलती नहीं होती, कॉर्डेलिया का उसका रोल उसको मिल जाता, उसकी प्रॉपर्टी में था, और राजा को जो है कि तकलीफ ही फिर होता दोनों बहन बेटियों से, तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होता। उसी ढंग से महाभारत में अगर पांडव हमेशा ही अच्छे रहते और उनकी सफरिंग होती जैसा कि हुआ, तो फिर गड़बड़ हो जाता। लेकिन पांडवों की भी कमजोरी थी कि जो है वो युद्ध में हार गए, शराब में हार गए, जुआ में हार गए, अच्छे से उसका राज चल रहा था, लेकिन एक गलती ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इसलिए आउट एंड आउट गुड मैन नहीं था पांडव लोग। उसी ढंग से रामायण में राम, ठीक है, वो इंटायरली गुड मैन नहीं थे, गुडनेस उनमें बहुत था, उनमें गलती थी। गलती क्या थी? तो सीता के साथ उसने जो किया वो मुश्किल में बेचारे पड़ गए, और फिर अपने बच्चों के साथ उनका जो व्यवहार रहा उसकी भी आलोचना हुई। ठीक है, तो पीटी एंड फियर ये उतरना ज्यादा जरूरी है, ये निकलना। ऐसा प्लॉट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? ए बैड मैन फ्रॉम माइजरी टू हैप्पीनेस। एक कंप्लीट जो बुरा आदमी है वो अगर दयनीय स्थिति से अच्छी स्थिति में आता है, ये भी प्लॉट अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, इसलिए ये भी आप में पीटी और फियर क्रिएट नहीं करेगा। अगला पॉइंट है एन एक्सट्रीमली बैड मैन फॉलिंग फ्रॉम हैप्पीनेस टू माइजरी। और एक अत्यंत ही बुरा व्यक्ति है, जैसे कि रावण। ठीक है, अगर सिर्फ रावण रहता हीरो के रूप में तो फिर रामायण गड़बड़ था। कि एकदम निहायत ही बुरा आदमी अगर वो अपनी अच्छी स्थिति से बुरी स्थिति में जा रहा है, दयनीय स्थिति में जा रही है, तो ये भी प्लॉट सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी स्टोरी जो है, दिस सॉर्ट ऑफ स्टोरी विल नॉट मूव अस क्या आइदर टू पीटी और टू फियर। हम लोग बुरा आदमी था, खत्म हो गया। बुरा आदमी था, दारू का धंधा कर करके करोड़पति बना था, ईडी का छापा हुआ, सब संपत्ति जेल में चला गया। तो इससे आपको तो कोई डर पैदा होगा नहीं कि बुरा आदमी है, ये था तो वैसे ही हुआ, दया भाव कहां से आएगा? क्लियर? पीटी इज ओकेजन्ड बाय अनडिजर्व्ड मिसफॉर्चून। पीटी कब होता है? जब आप पे
जो दुर्भाग्य है, जो आप डिजर्व नहीं करते हैं, वो आप पे गिर जाता है। जैसे कि किंग लियर में, लियर का वो दुर्भाग्य था कि उसने कॉर्डेलिया को भगा दिया, और जो उसकी दो नौटंकी जो डॉटर्स थी, उन लोगों पर उसने भरोसा किया। तो ये इस चीज के लिए किंग लियर वो डिजर्विंग नहीं था, जितना उसको प्रताड़ित किया गया एक छोटी गलती के लिए। ठीक है, उसके भरोसे का जो है कि कत्ल हो गया बेचारे का। ठीक है, तो इस और धीरे धीरे करके बेचारा बूढ़ा राजा किस हालत को प्राप्त हो गया। तो ये हमें पीटी का भाव पैदा करता है। एंड फियर बाय द मिसफॉर्चून ऑफ वन लाइक आवर सेल्फ। ठीक है, और ये डर जो है, ठीक है, आम आदमी में कायम भी होते रहता है। हम लोग जैसे लोगों के बीच में भी फियर का वातावरण बन जाता है, क्योंकि हम लोग हर कोई मिसफॉर्चून से डरते हैं, दुर्भाग्य से डरते हैं, ये जो है। लेकिन ये अनडिजर्विंग नहीं होने का, आपको वैसा जैसा आपने काम किया, कैरेक्टर्स ने इमिटेट किया, उसी के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलना, उसकी सफरिंग होनी। अब बताओ, ये छोटा सा जजमेंट में डिफरेंस हुआ क्लियर का, जो उसकी मौत का कारण बन गया। तो ये तो आप लग गया कि कहीं ओल्ड मैन की तरह हम भी तो नहीं चक्कर में फंस सकते हैं। ये ओल्ड मैन, ये तो जनरली गलतियां हो जाती हैं ऐसी, आदमी मिसजज कर लेता है। तो क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? ठीक है, तो किंग लियर की जो दुर्दशा है, माइजरेबल कंडीशन है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को दया भी आती है। ठीक है, कि सच एन ओल्ड मैन शुड नॉट बी पनिश्ड like that, should not face such a miserable condition। कहाँ राजा था बेचारा, बेगर हो गया, रोते रहता है। ठीक है, सिर्फ एक मिस्टेक के कारण। तो ये इसके साथ भी क्या है कि ही मस्ट लुक लाइक आवर सेल्फ। ए कैरेक्टर, ए ट्रेजिक हीरो, ठीक है, शुड बी लाइफ लाइक, जैसे हमारे बीच होता है वैसे ही वो कैरेक्टर को भी होना चाहिए। उसी ढंग से ओथेलो है, उसी ढंग से और भी कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ट्रेजेडी में ये होता है, जब तक कि पीटी और फियर नहीं होगा, देयर कैन नॉट बी एनी ट्रेजेडी। ठीक है। ले लो आजा, ले लो। अब क्या है कि जो मिसफॉर्चून है, ठीक है, ये उसके द्वारा कोई बुराई या उसकी गरीबी से उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसके एक्शन के आधार पे मिसफॉर्चून आना चाहिए। ठीक है, किंग लियर में कोई बुराई तो थी नहीं, वो इतना गया भी था इंसान नहीं था, गरीब भी नहीं था, असहाय भी नहीं था। मैकबेथ द सेम कंडीशन। ठीक है, तो these things must be seriously concerned, and if these things happen without arousal of pity and fear, ठीक है, there cannot be tragedy। yes, error of judgment should form the basis of the cause of tragedy। कुछ आपने गलत जजमेंट लिया,
उसके कारण ट्रेजेडी होती है, ठीक है। तो उसमें पीटी एंड फियर का सेंस आता है। एरर इन जजमेंट, जजमेंट लिया उसने, किसने, किंग ने, लेकिन वो गलत निकला और सारा प्रॉब्लम उसी में। मैकबेथ ने he also took a wrong decision. He tried to become the king of Scotland, and for that purpose he killed the king. And from this act of murder you see the arrival of serious situations, grave situations, and in spite of all the things, ठीक है, he gets his punishment. In any tragic work, ठीक है, the error of judgment, ठीक है, should be there. However, in great tragedies, misfortune is the main cause of suffering. लक को आप चेंज नहीं कर सकते, नियति को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीक ट्रेजेडीज में क्या रहता था कि मोस्ट ऑफ द ट्रेजिक हीरोज सफर बिकॉज ऑफ देयर बैड लक और बिकॉज ऑफ द wrath एंड एंगर ऑफ सर्टेन गॉड्स, ठीक है। बट इन द ट्रेजिक वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर you see that sorrow and suffering start from the क्या error of judgment. Clear हुआ? Another thing is that plot should have only one क्या issue. There should not be many issues. And the change in the hero's fortune must not be from misery to happiness. अगर जो ट्रेजिक हीरो है, अगर वो चला जाता है दुख से हैप्पीनेस की ओर, हमारे लाइफ में बहुत सारे चीजें होती हैं कि हम शुरू में बहुत तकलीफ में रहते हैं और फिर धीरे धीरे अच्छे सिचुएशन में चले आते हैं। तो ये ट्रेजेडी का स्टोरी या प्लॉट नहीं हो सकता है, ठीक है। हीरोज मस्ट सफर एंड यू सी देयर जर्नी फ्रॉम हैप्पीनेस टू माइजरी, नॉट फ्रॉम माइजरी टू हैप्पीनेस। वाइस वर्सा नहीं होना चाहिए, उल्टा काम नहीं। हीरो मस्ट सफर either from his fortune or from his error of judgment, and the journey must be from happiness to misery. उल्टा नहीं होने का है। But from happiness to misery, and the cause of it must be not any depravity but some grave error on his part. ये ग्रेव एरर हीरो के साइड से होने का है, ठीक है। किसी कमी के चलते नहीं, बल्कि उसके अपने जजमेंट के चलते होना है, ठीक है। इफ इट हैपेंस ओनली देन यू विल फाइंड ए गुड ट्रेजिक वर्क, ठीक है। फिर क्या, द प्लॉट शुड बी सो फ्रेम्ड दैट इवन विदाउट सीइंग द थिंग्स टेक प्लेस, ही हु सिंपली हियर्स द अकाउंट ऑफ देम will be filled with horror and pity at the incident. The plot should be framed, ऐसा होना चाहिए, where क्या है, he who hears or sees
the incidents of the plot must be filled with horror and pity. Why? Because the pleasure of tragedy lies in pity and fear. Okay? And the dramatist must do it, produce it as a work of imitation. Okay? Characters do not involve, but their actions are involved. Okay? In a drama. It is clear, therefore, that the couch should be included in the incidents of the story. जो काउज होगा एरर ऑफ जजमेंट का या कैरेक्टर के एरर का, ठीक है, या मिसफॉर्चून का, ठीक है, वो यू मस्ट सी फेस इट इन द डिफरेंट इंसिडेंट्स. ठीक है. सिर्फ किंग लियर में एक ही चीज थोड़ी है कि खाली उसने दे दिया, डिसोन कर दिया बेटी को अपने प्रॉपर्टी से. वही तो खाली एक पीटी का इशू नहीं है, बल्कि पीटी का इशू है कि जब वो अपने डॉटर्स के यहाँ जाता है तो मिसबिहेव है और बाकी सारे हैं. फिर वो फूल है जो उसको बताता है, केंट है उसको बताता है. इसके बाद इसके बाद फिर धीरे धीरे प्लॉट आगे बढ़ता है. तो वहां पे एडमंड, एडगर, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स appear. ठीक है. Then you see the in-laws of King Lear. They also are instrumental in damaging the mindset of King Lear. तो इस ढंग से क्या है, in various incidents, ठीक है, you see the effect of tragedy and hence pity and fear are caused. क्लियर हुआ? तो कैरेक्टर कैसा हो, इसके लिए 4 पॉइंट्स बनाए अरिस्टोटल ने. पहला क्या है कि कैरेक्टर्स शुड बी गुड, दे मस्ट बी appropriate एंड दे मस्ट बी रियलिस्टिक. ऐसा नहीं हो कि लड़की तो रियल नहीं है, ठीक है, ये ऐसी बना बनाया कैरेक्टर है, फिल्मी कैरेक्टर है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. इट मस्ट बी रियल लाइक वी पीपुल. ठीक है. एंड थ्रू आउट द प्ले, थ्रू आउट द ड्रामा, ठीक है, कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन. कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन्ड. क्यों, कैसे? किंग लियर आप देख रहे हो कि कंसिस्टेंटली, ठीक है ना, ही इज शोइंग हिज कैरेक्टर. देयर इज नो सडन चेंज इन हिज कैरेक्टर. कोई सडन चेंज तो नहीं हुआ. किसी के कैरेक्टर में तुरंत में बदलाव नहीं आता है. ठीक है. धीरे 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 वो आगे की ओर बढ़ता है. ठीक है. और जिस ओर बढ़ता है उसी ओर बढ़ते चला जाता है. क्लियर ना? तो ये इतना सारा चीज हुआ, ये आपको याद रहेगा? यस सर. यस सर. तो ये सारा क्या है, ये हो गया अबाउट प्लॉट. ठीक है. अरिस्टोटल में क्या क्या 3 क्वेश्चन आता है वाइटल. क्या है कि डिस्कस द आइडिया ऑफ प्लॉट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. ठीक है ना? या
What is a plot? Discuss it as presented by Aristotle in Poetics. ठीक है, तो प्लॉट में ये सारे आप दीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2 होगा क्या? डिफिनीशन ऑफ ट्रेजेडी बाय अरिस्टोटल। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको उसको डिस्कस करना है। फिर एक ये भी प्रश्न आता है कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कॉमेडी? डिस्कस इट। ठीक है ना, एज प्रेजेंटेड इन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। क्लियर हुआ? तो Yes, ये sir. सारे मेन, हाँ ये सारे मेन पॉइंट्स हैं किसके? अरिस्टोटल के पोएटिक्स के। इतना आप लोग मुंह पे रखिएगा, जबान पे रखिएगा। ठीक है, आगे के क्लास में हम लोग और भी चीज डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो फिर मिलते हैं कल, Okay. या Okay, कल sir. कल हो सकता है कि ना भी हो। ठीक है, हाँ पूछ लेना। ठीक है, ओके।